Good morning, students. Students, today I am going to explain you lesson number 6 of English. Its name is It's Only a Matter of Practice. Okay, for that you have to keep open your English textbook page number 12. आपको page number 12 open करने का है. Open करके आप बैठिए so that you can see how to read and to understand. Okay, reading is also as important as understanding. तो हमको पढ़ना भी आना चाहिए और किस तरह से पढ़ना चाहिए, that is also an skill. तो लेट अस सी नाउ इट्स ओनली अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस. ये सिर्फ प्रैक्टिस का ही एक नतीजा है. ये सेंटेंस ये स्टोरी में कब और कहाँ यूज किया गया है, दैट वी विल सी इन दिस चैप्टर. सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर नाउ. लॉन्ग लॉन्ग एगो इन फार अवे चाइना देयर लिव्ड एन आर्चर कॉल्ड चेन याओजी. He was a very skilled archer and could perform a wonderful feats of archery. This is the story which was held in China. मतलब ये चाइना में हुआ था ये स्टोरी. दिस स्टोरी इज अबाउट चाइना. और चाइना में देयर वाज एन मैन. एक मैन था. हिज नेम वाज चेन याओजी. ही वाज एन स्किल्ड आर्चर. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्चर? वन हु इज स्किल्ड इन आर्चरी. आर्चरी मीन्स बो एंड एरोस चलाने में. जैसे कि हमने अगर आपने अभी हॉलीडेज में देखा होगा कि रामायण एंड महाभारत, इन दैट यू कैन सी राम कृष्ण, ये दिस गॉड्स दे यूज टू use bows and arrows. तो कैसे bows and arrows चलाते थे. So such persons, those who are skilled in archery, are known as archers. So जिस चेन याओजी, जो चाइना के ये जो चेन याओजी थी, he was also an skilled archer. He can perform different feats. वो अलग अलग feats कर पाता था. मतलब अलग अलग वे से उसके मतलब उसमें जो skills थे वो बताता था वो. ठीक है. He could hit the target precisely at the center even when it was placed at a very long distance. He liked to show off his skills to the admiring crowds that gather around him. Now, what was the main quality of this man? कि अगर आपको पता होगा कि अगर जो bows and arrows होते हैं उसमें एक सर्कल दिया जाता है, एक सेंटर दिया जाता है. So the person has to hit the center. और exactly सेंटर पे मारने के लिए it needs a lots and lots of practice. हर किसी को एकदम सेंटर पे मारते मतलब सेंटर पे हिट करते नहीं आता. So this person he was very much skilled and he liked to perform his he likes to perform this feat in front of the जो क्राउड उसके सामने है, जो ऑडियंस हम जिसे कहते हैं ऑडियंस, उनके सामने उसे ये फीस्ट करना बहुत अच्छा लगता था. ओके, दैट इज नोन एज टू शो ऑफ हिज स्किल्स. मतलब दूसरों को बताना कि मुझे कितना आता है. ही लाइक टू शो ऑफ हिज स्किल. ओके, सो व्हाट वाज हिज क्वालिटी? दैट ही कैन ऑल्सो हिट एट द सेंटर. एग्जैक्टली आप कितने भी दूर रखो, ही कैन हिट एट द center through his bows. Okay, so through his arrow. जो bows and arrow होता है ना, तो जो arrow होता है वो arrow सीधा जाकर वो center में लगता है. तो he was skilled in that and he liked to show off his skills. Now one day he was practicing his skill in front of many admirers when he noticed an old man standing at the back. Okay, one day what happened? He was show off. मतलब he was practicing his skill. वो जब एक बार अपनी skill practice कर रहा था वो, he was practicing his skill that time in front of the admirers. What is the meaning of admirers now? Admirers मतलब the person who admires his skill, जो उसे देखने आते हैं. जैसे आजकल के ज़माने में हम जिसको ऑडियंस कहते हैं. जैसे कहीं पे क्रिकेट मैच हो रहा है तो the people those who are sitting there to see the match is known as admirers. And in other way we can say कि audience, जो audience वहाँ पे बैठे थे, लोग जो देख रहे थे, उनके सामने one day he was practicing and in among those audience, और उस audience में एक old man था. He was standing at the back. Okay, the man was carrying gourds of oil that were hanging from a long cane of his on his shoulder. And that old man, what he was carrying, वो क्या उसके पास में था? उसके पास में एक गोड़ था. उसमें उसके पास में एक गोड़ मतलब जो आप बोल सकते हैं ड्राइड फ्रूट जिसको हमने यहाँ पे मीनिंग्स में भी है. इट इज देयर कि दैट कंटेनर मेड फ्रॉम लार्ज ड्राइड फ्रूट ऑफ हार्ड स्किन, जिसकी स्किन बहुत ही कड़क होती है और उसके अंदर का उसको खाली करके अपन यू कैन यूज दैट एज अ वेसल की तरह. जैसे बर्तन को हम यूज करते हैं वैसे उस तरह वी कैन यूज दैट इज नोन एज गोड. जैसे कि एग्जाम्पल वी कैन टेक इट एज पम्पकिन. ओके, सो दिस मैन ही वॉज होल्डिंग दैट वेसल. मतलब वो जो गोड है उसको वो केन में लटका हुआ, जो केन होता है उसमें लटका हुआ था वो. देन ही वॉज स्टैंडिंग एट द बैक. ऑल द अदर पीपल, the man, okay, all the other people were clapping their hands and praising Chen Yaozi.
नाउ व्हेन ही डिड हिज फीस्ट, जब उसने अपना परफॉर्मेंस दिखाया, आफ्टर हिज परफॉर्मेंस ऑल द पीपल दोज हु वर गैदर्ड हियर दे वर क्लैपिंग, they were kept clapping, they were praising this Chen Yaozi. वो उसकी तारीफ कर रहे थे कि wow, what a wonderful task he has done, what a wonderful, wow, कितना अच्छा कर सकता है ये. So like this they were praising him, but this man he stood very silently there. Okay, but this man he was quiet, he neither clapped nor uttered words of praise. तो ये जो मैन था, ओल्ड मैन, ही जो वहाँ पे खड़ा हुआ था उस एडमायरर के बीच में, उस ऑडियंस के बीच में जो था, he didn't utter a single word, मतलब उसने एक भी वर्ड वहाँ पे उसके प्रेज में, उसकी तारीफ में एक भी वर्ड नहीं बोला. Okay, he just stood there nodding his head and said it's just a matter of practice. उसने only he uttered one sentence, uttered यानी धीरे से बोलते ना हम जिसको बोलना, said, तो जो uttered उसने क्या बोला कि it's just a matter of practice, ये सिर्फ प्रैक्टिस का ही एक नतीजा है. Chen Yaozi was annoyed. Are you an archer yourself? Do you think anyone can do what I can do with my bows and arrows? So seeing this, उसकी तरफ देखते हुए Chen Yaozi was annoyed. मतलब उसे बहुत गुस्सा आ गया, because everyone standing in the audience they were praising him. सारे लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, but this old man he was standing quiet, और चुपचाप खड़ा होकर भी ये बोल रहा है कि it's just a matter of practice, ये सिर्फ प्रैक्टिस का ही नतीजा है. So he got annoyed, उससे बहुत गुस्सा आया. He said कि what do you know about archery? What do you think of yourself? Are you an archer? क्या आप एक आर्चर हो? आपको बोज एंड एरोस चलाते आता है? What do you think of yourself? Okay? तो no sir, the old man replied, I am not an archer and I don't doubt your skill. All I said was everything's a matter of practice. Okay? तो he said कि no sir, I am not an archer, मैं एक आर्चर नहीं हूँ. Neither I am doubting your skill. मेरे को आपकी जो स्किल है उस पर भी मुझे कोई डाउट नहीं है. ओनली आई वॉन्ट टू से इज दैट इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, एवरीथिंग इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस. Chen Yaozi became very angry. What do you know that you pass such thoughtless comment on other people? Who are you? So Chen Yaozi again, उसका जो गुस्सा थी उसके अंदर, वो नाराजगी वो और बढ़ गई. उसने बोला कि what do you think? How can you pass such a thoughtless comment? What is the meaning of thoughtless comment? Thoughtless comment वो होता है जो बिना सोचे समझे हमारे मुंह से कोई सेंटेंस निकल जाता है, उसे कहते हैं थॉटलेस कमेंट. सो हाउ कैन यू पास दिस थॉटलेस कमेंट? ओके, हु आर यू, तुम अपने आप को समझते क्या हो? हु आर यू, तुम कहाँ से हो? ओके, प्लीज डोंट गेट एंग्री सर, आई एम एन ऑयल सेलर एज यू मस्ट हैव गेस्ड फ्रॉम द गोड्स. आपने उसने बोला प्लीज सर डोंट गेट एंग्री, आप नाराज मत होइए सर. सर आई एम एन ऑयल सेलर. हु एम आई एम एन ऑयल सेलर, तेल बेचने वाला हूं मैं. एज यू मस्ट हैव गेस्ड फ्रॉम माई गोड, ये जो मेरे पास में जो सामान है उससे आपने गेस्ट कर ही लिया होगा दैट आई एम एन ऑयल सेलर. Every day I fill this gourd with oil and sell them. Over the years I have achieved some skill in filling the gourds. If you allow me I will show it to you. Now what is said कि every day I fill this gourd with oil. मैं ऑयल सेलर हूँ तो इस गोर्ड में मैं ऑयल फिल करके मैं बेचने जाता हूँ. तो एवरी डे आई यूज टू फिल दिस ऑयल. सो डेली वो ही काम करके आई हैव ऑल्सो डेवलप्ड सम स्किल, मुझे भी कुछ स्किल आते हैं. तो इफ़ यू अलाउ मी, अगर आप मुझे अलाउ करेंगे तो आई विल शो माई स्किल टू यू. ओके, growled Chen Yaozi. Everybody was curious to see what would happen next. He said, मतलब गुस्से से अपन जैसे बोलते ना, ठीक है चलो परफॉर्म करके बताओ, कम ऑन. सो एवरीबडी, दोज वर स्टैंडिंग देयर, जो ऑडियंस वहाँ पे थे, जो लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे, व्हाट दे सेड, दे वर वेटिंग कि अभी क्या होने वाला, अभी क्या होगा, हाउ ही इज गोइंग टू, ही हैज चैलेंज्ड हिम एक्चुअली. तो व्हाट, अभी क्या होगा, तो वो लोग देखने के लिए दे वर ईगर. The admirers or the audience, you can say, they were eager to know what would happen next. Okay, patiently the old man sat down an empty gourd on the ground. Patiently मतलब silently, वो जैसे ये गुस्सा हो रहा था Chen Yaozi, he was very angry. So this old man he was patient, मतलब silently उसने अपना जो gourd था, जो उसके पास में जो dried fruit था उसको उसने नीचे रखा. Then he put a small coin on the mouth of the gourd. And after that he put a small coin. पहले ज़माने में in olden days, ये कहानी अभी की नहीं है, this is not a recent story, this is the story of olden days. So olden days में जो coins होते थे, उस coins में सेंटर में एक होल होता था, तो he has placed that coin in the mouth of that gourd. उसके ऊपर उसने वो coin रखा, उस coin में इतना सा होल,
कॉइन आपने देखा हो ना, कॉइन की साइज क्या होती है, उसके सेंटर का जो होल है, ओके, कॉइन at the center. Then the old man stood up, took some oil in his ladle and began to pour the oil into the gourd from the height. Now उसने क्या किया, उसको नीचे रखा. He has kept that empty gourd down. उसको नीचे रखने के बाद में लेडर, पता है ना आपको जो चम्मच होता है बड़ा वाला, तो he took the oil in that ladder. लेडर में उसने तेल लिया and from the height, मतलब नीचे वो था और ऊपर से उसने ऑयल पोर किया. And he poured the oil. कहाँ से, एक तो उसके ऊपर कॉइन था, कॉइन के अंदर से उसे ऑयल डालना था उस गोर्ड में, ठीक है. सो द ऑयल वेंट स्ट्रेट इनटू द गोर्ड थ्रू द होल इन द कॉइन. व्हेन द ओल्ड मैन हैड फिनिश्ड फिलिंग अप द गोर्ड, ही लिफ्टेड अप द कॉइन. नॉट अ ट्रेस ऑफ ऑयल कुड बी सीन ऑन इट. नाउ व्हाट हैपेंड कि आफ्टर पोरिंग द ऑयल फ्रॉम द हाइट विद द हेल्प ऑफ दैट लेडर, वो ठीक है, जब उसने वो ऑयल को पोर किया तो व्हाट ही हैज सीन कि जब वो उसने कॉइन निकाला, ही हैज शोन टू द ऑडियंस, वो उसने इवन वो चेन याओजी को भी दिखाया, तो जो कॉइन था, कॉइन का जो सेंटर था, सेंटर को विदाउट टचिंग द सेंटर, मतलब वो जो ऑयल ऐसे पास हुआ उसके अंदर से कि आपको वो कॉइन उठाने के बाद में उस कॉइन में इतना सा ट्रेस ऑफ ऑयल नहीं था, मतलब ऑयल का इतना सा भी कुछ भी नहीं लगा था. इवन सेंटर को भी, जो सेंटर का जो सर्कल था उसमें भी वो ऑयल नहीं लगा. ओके, इतने फिनिशिंग, इतने अच्छी तरीके से उसने वो ऑयल डाला. सो द पीपल वॉचिंग इट वो स्पीचलेस है विथ वॉन्डर. स्पीचलेस मतलब कुछ भी ऐसी बातें, मतलब स्पीचलेस मतलब उनके पास में इवन दे हैड नो वर्ड टू प्रेज हिम. उनको प्रेज करने के लिए कोई वर्ड ही नहीं बचा था. दे वर स्पीचलेस. ओके, बट द ओल्ड मैन ओनली स्माइल्ड. एज आई सेड, देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट इट. इट्स ओनली अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, यू सी. सो द ओल्ड मैन इन टर्न, ओल्ड मैन ये नहीं चाहता था कि मैंने अब ये किया तो लोगों ने क्लैपिंग करना चाहिए, लोगों ने मेरी तारीफ करना चाहिए. नो, ही सेड कि he just smiled. उसने एक स्माइल दिया, उसने बोला कि मैंने बोला था ना सर, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस. अगर कोई भी चीज़ की हम रोज रोज प्रैक्टिस करते हैं तो नेचुरली वी विल डेवलप सम स्किल. हम ऐसा कुछ कर पाते हैं जो दूसरे नहीं कर पाते. बिकॉज हम वो क्यों कर पाते, बिकॉज वी आर प्रैक्टिसिंग इट डेली. अगर आई विल गिव यू एग्जाम्पल एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर. चेन याओजी lost all his anger and annoyance. He gave a short laugh and said, "You have taught me something important today." Now Cheng Yaozi, he has lost. जब उसने उसका स्किल देखा, when he saw the skill of that old man, so that time he forgot his anger. उसने अपनी एंगर भूल गया. अब उसकी जो उसके अंदर जो गुस्सा था वो पूरी तरह से शांत हो गया. He understood that day कि भाई मैं ये रोज करता हूँ, that's why I am skilled in bows and arrows. दिस मैन जो इसने करके दिखाया वो मैं नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम एन आर्चर. मैं उसकी तरह इतने अच्छे से ऑयल नहीं डालूंगा. अगर मैं ऑयल डालूंगा, इफ आई पोर द ऑयल फ्रॉम द हाइट, तो वो ऑयल तो कहीं और ही चला जाएगा, है ना. तो ऐसे करके सो ही टोल्ड मी कि दैट आई हैव लर्न समथिंग फ्रॉम यू, कि आपने मुझे कुछ सिखाया है आज. ओके, आफ्टर दैट चेन याओजी नेवर शोड ऑफ और बूस्टेड अबाउट हिज स्किल एज एन आर्चर. सो उसने क्या सिखाया उसको कि कभी भी किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए. वी शुड नॉट, मतलब हमेशा कि भाई मुझे ये आता है, किसी और को नहीं आता, ठीक है ना. इफ ही नोज दैट, अगर उसको अच्छी तरह से आर्चरी आता है तो अदर पर्सन मे हैव सम अनदर स्किल, उसके पास में उसकी दूसरी स्किल होंगी. तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास में स्किल है, उसके पास में स्किल नहीं है, तो मुझे घमंड करना चाहिए अपनी स्किल पे. तो उस दिन के बाद में, आफ्टर दैट डे, जब आफ्टर सीइंग दिस ओल्ड मैन, चेन याओजी ने अपनी तारीफ करना, अपनी बड़ाई करना, ही स्टॉप दैट एंड ही बिकेम अ वंडरफुल पर्सन फ्रॉम दैट डे. ओके, सो व्हाट वी हैव लर्न. हाँ, मैं आई टोल्ड यू कि इन द एंड आई विल गिव यू सम एग्जांपल. अभी देखिए, नाउ यू कैन सी कि योर मदर, मम्मी जो होती है आपकी, शी प्रिपेयर्स फूड फॉर यू डेली. वो रोज आपके लिए खाना बनाते हैं. तो अगर इफ यू विल टेल वन डे मम्मी रोज खाना बनाती, मम्मी इज एक्सपर्ट इन कुकिंग बिकॉज शी प्रिपेयर योर मील, लंच, ब्रेकफास्ट, मील, एवरीथिंग शी प्रिपेयर्स फॉर यू डेली. अगर आप पापा को बोलोगे कि पापा यू लीव योर ऑफिस वर्क एंड यू गो टू द किचन एंड प्रिपेयर समथिंग, तो नेचुरली कि जो आपको मम्मी के हाथ का जो टेस्ट है, पापा के हाथ का आपको टेस्ट नहीं पसंद आएगा. बिकॉज मम्मी शी प्रिपेयर्स दिस डेली. सो रोज वो अपने इसमें प्रैक्टिस करते करते शी हैज बिकम नाउ वंडरफुल शेफ. बट फादर पहली बार बनाने जा रहे, अगर उनको चपाती रोटी बेलने दोगे आप, तो क्या पापा गोल रोटी बेल पाएंगे? नो, इट इज नॉट पॉसिबल. बट इसका मतलब ये नहीं है कि मम्मी इज ग्रेट एंड पापा इज नॉट ग्रेट, बिकॉज पापा इज वर्किंग इन ऑफिस. पापा ऑफिस में जो काम कर रहे हैं, वो जो वर्क है वो मम्मी नहीं कर पाएगी. सो ऑल हैव डिफरेंट स्किल्स. सो हर एक इंसान, जो भी लिविंग थिंग है, उसमें डिफरेंट स्किल्स होता है. कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा होता है, तो दैट डजंट मीन कि जो बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है
वो लाइफ में कुछ नहीं करेगा। कभी किसी को प्रॉब्लम होती है, जैसे कभी कोई लर्न नहीं कर पाता, तो दे हैव देयर प्रॉब्लम, दैट डजंट मीन कि दैट ही इज नॉट स्किल। सम मे बी गुड इन ड्राइंग, सम मे बी गुड इन क्राफ्ट, सम हैव स्वीट वॉइस, वो बहुत अच्छी तरह से गा सकते हैं। यू कैन सी लता मंगेशकर, इफ लता मंगेशकर ने बोला रहता कि मैं गाना छोड़ देती हूँ, मैं कुछ और करती हूँ, मैं ड्राइंग बनाती हूँ, तो क्या वो ड्राइंग बना सकती थी? नो। इफ सचिन तेंदुलकर बोलता था कि मैं आई विल नॉट प्ले क्रिकेट, मैं मुझे पढ़ने में ही मेरिट आना है, आई डोंट, तो ऐसे तो ही बिकेम स्किल्ड इन प्लेइंग क्रिकेट। तो हर एक के पास में अपनी डिफरेंट स्किल होती है, एंड इट इज़ नॉट गुड टू शो ऑफ अ स्किल। हमको हमारी स्किल कि जो है कि भाई मुझे ये आता है, दूसरों को नहीं आता है, कि कंपैरिजन भी नहीं करना चाहिए, ना ही शो ऑफ करना चाहिए। अगर हम में ये स्किल है तो इट इज़ द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। हमको अच्छी बात है कि वी गॉट दिस स्किल, वी गॉट दिस टैलेंट, हम जिसको बोल सकते हैं स्किल का अदर वे में वी कैन से कि हम में ये टैलेंट है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि किसी और में कोई टैलेंट नहीं है। ईच एंड एवरी पर्सन इज ब्लेस्ड इन दिस वर्ल्ड विथ सम टैलेंट। सिर्फ अपने अंदर में क्या टैलेंट है ये पहचानना जरूरी है, और वो स्किल को आगे लाना जरूरी है। तो हमने इस चैप्टर से ये सीखा कि वी शुड नॉट शो ऑफ, हमको शो ऑफ नहीं करना है, हमको अपने टैलेंट को पहचानना है, उसको बूस्टअप करना। एवरीथिंग इज गुड, बट शो ऑफ करना अच्छी बात नहीं है। ओके, सो नाउ सी हियर we will see the hard words, we will take down the hard words and other exercises of this chapter. So जो hard words है चेन याओजी का, तो उसमें this hard words I will give you, मैं आपको hard words आपको सारे दे दूंगी, और उसके बाद में ये जो है मीनिंग्स, ये जो है मीनिंग्स यू कैन राइट इट फ्रॉम द वर्ब बुक। वर्ब बुक में से आप ये मीनिंग्स लिख सकते हो। यहाँ पे वर्ब बुक्स में दिए हुए हैं चेन याओजी का, पेज नंबर 19 में यू विल गेट दिस मीनिंग्स। अभी आई विल एक्सप्लेन यू क्वेश्चन, वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको ये मैं आई एम डिस्कसिंग विथ यू क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेस, देन आपको ये सेम फॉर्म में आपको इसमें थ्रू ऐप आपको भेजा जाएगा। ओके, सो दैट यू कैन टेक डाउन इट। नाउ आई एम ओनली डिस्कसिंग विथ यू। मतलब द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज चेन याओजी। अभी मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया हु वाज चेन याओजी, यू कैन सी फ्रॉम द फर्स्ट लाइन ओनली he was Chen Yaozi. Chen Yaozi was a very skilled archer. Okay, ये कौन था? ये बहुत ही skilled archer था। Now second question, what did Chen Yaozi like? उसे क्या पसंद था? तो our answer is Chen Yaozi liked to show off his skill to the admiring crowds. Here also you can find out very easily from this textbook. यहाँ पे first paragraph में ही आपको ये दोनों आंसर मिल जाएंगे from the first paragraph. Okay, Chen Yaozi liked to show off his skills to the admiring crowds that gather around him. Third question is, what did the old man say? Old man ने क्या बोला? Now देखो, what did the old man say? तो the old man say का past tense use करने का, because there is did in the question, so you have to use the past tense of say, that is said. The old man said, क्या बोलता था? old man ने क्या बोला उस crowd में खड़े रह के? It's just a matter of practice. सो यू हैव टू राइट सेम, आपको इन्वर्टेड कॉमा यूज करके, आई विल शो यू, इन्वर्टेड कॉमा यूज करके आपको ये सेंटेंस लिखने का है। मैं एवरीथिंग आई विल गिव यू लाइक दिस। नाउ आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 2 इज यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। आपको सेंटेंस बनाने का फर्स्ट इज शो ऑफ, शो ऑफ यानी दिखावा करना। वन एग्जाम्पल आई विल गिव यू, रानी लाइक्स टू शो ऑफ हर न्यू ड्रेसेस। आप कुछ भी लिख सकते हो, न्यू ड्रेसेस, किसी को न्यू ड्रेस दिखाना अच्छा लगता है रोज नए नए कपड़े पहनकर, किसी को साइकिल या पेन्स लाना अच्छा लगता है कि टुडे आई एम यूजिंग दिस पेन, सेकेंड डे दैट पेन, वट एवर, किसी को जिस, मतलब कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, कोई भी सेंटेंस आप लिख सकते हो। देन एनॉयड, एनॉयड मीन्स गुस्सा, नाराज होना। ओके, एग्जाम्पल में मैं आपको एक दे रही हूँ, देन यू कैन राइट इट एनी अदर सेंटेंस ऑल्सो। सेंटेंसेस आप अपने मन से भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मदर वॉज एनॉयड व्हेन शी सॉ द ब्रोकन वास। वास मतलब जिसमें फ्लावर पॉट बोलते हैं ना, तो अपन कोई चीज तोड़ देते तो मदर शी गेट्स एनॉयड। थोड़ी देर के लिए तो मम्मी को गुस्सा आता है ना कि भाई कैसे तोड़ दिया आपने ये करके। सो द मदर वॉज एनॉयड व्हेन शी सॉ दिस ब्रोकन वॉस, या ब्रोकन वॉस। डाउट, डाउट मीन्स समथिंग और समवन। वी शुड नॉट डाउट ऑन अदर्स विदाउट रीजन। हमने किसी पे, मतलब अगर हमने आंखों से नहीं देखा है तो हमने किसी पे डाउट नहीं करना चाहिए। देन इफ यू अलाउ, इफ यू अलाउ मतलब अगर आप मुझे परमिशन देंगे, तो इफ यू अलाउ, so if you allow me I will show you my new toys or whatever, my new bicycle, I will ride a bicycle, new bicycle में चलाकर बताता हूँ आपको। if you allow me, मैं ये करके बताऊंगा वो, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। then क्वेश्चन नंबर 3 is cut। क्वेश्चन नंबर 3 को आपको कट करने का है। जो
अब अपन वी विल गो विथ फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ. उसमें आपको क्या करने का, एडिंग ING. सो द फर्स्ट वर्ड इज एडमायर. एडमायर में जब हम, एडमायर की स्पेलिंग क्या है, ADMIRE. तो जब एडमायर से वी मेक इट, वी एड ING. जब हम ING लगाते हैं तो आप एक बात याद रखिए कि द वर्ड्स विथ एंड विथ E, जिसमें E लगा होता है उसका E रिमूव करना है. वी हैव टू रिमूव दैट E एंड एड ING. सो एडमायर की जो स्पेलिंग है एडमायरिंग में क्या हो जाएंगी, ADMIRING. नो द सेकेंड वर्ड इज स्टैंड. अब स्टैंड डी पे खत्म हो रहा, सिंपली उसमें आपको ING लगा के स्टैंडिंग लिखना है. देन थर्ड वर्ड इज कैरिंग. कैरी का हम जब कैरिंग करते हैं तो इसमें Y रिमूव नहीं करते. कैरी CARRY, कैरीइंग. हैंग, हैंगिंग. इसमें भी हमको सिंपली हैंग, जी के बाद में हमको ING ऐड करने का, HANGING. देन प्रेज. अब ये अगेन ये वर्ड, दिस वर्ड इज एंडिंग विथ E. हमको E हटाना है, हटाकर उसमें ING लगाना है. तो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ प्रेजिंग, PRAISING, प्रेजिंग. देन लास्ट वर्ड इज क्लैप. अब आपको क्लैप का, जब आप क्लैपिंग करोगे तो उसमें आपको क्लैपिंग है, क्लैपिंग, नॉट क्लैपिंग. क्लैप पूरा लिखने का आपको CLAP. वन मोर P वी हैव टू ऐड बिकॉज दिस इज क्लैप. यहाँ तक क्लैप हो गया, पिंग लगाने का है तो PING. तो व्हाट विल बी द स्पेलिंग ऑफ क्लैपिंग, CLAPPING. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू स्टार्ट. देन असाइनमेंट 2. यहाँ तक हमारा हो गया. अब हम चालू करेंगे असाइनमेंट 2. What could the old man do? Describe it in one sentence. अब old man क्या कर सकता था, हाँ, तो the old man could pour oil into the gourd from a height through a hole in the coin without the oil touching the coin. वो क्या कर सकता था, दूर से he can pour that oil into that gourd. उस कॉइन के अंदर से वो ऑयल डाल सकता था विदाउट टचिंग दैट कॉइन. वो उसको बिना टच करे वो ऑयल पूरा उसके अंदर से पास हो सकता था. नाउ व्हाट डिड चेन याओजी टेल द ओल्ड मैन एट द एंड. आखिरी में चेन याओजी ने ओल्ड मैन को क्या बोला. चेन याओजी, नाउ टेल, पास्ट टेंस ऑफ टेल. देखते जाओ, जहां पे डिड है वी आर यूजिंग द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब. जैसे टेल है, टेल का पास्ट टेंस हो जाएगा टोल्ड. सो चेन याओजी टोल्ड द ओल्ड मैन, यू हैव टॉट मी समथिंग इम्पोर्टेंट टूडे. आज आपने मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात सिखाया है जो कि मैं अपनी पूरी लाइफ में याद रखूंगा. एंड आई विल नॉट रिपीट दिस अगेन. Then next, complete the following sentence with correct. Now we will move on to question number 2 of assignment 2. Complete the following with the correct expressions from the textbook. The people watching it were. अब आपको क्या करने का है, what you have to do, complete the following with correct expression from the textbook. The word, the sentence जो दिया हुआ है उसके आगे का आपको लिखने का है. तो speech, the people watching it were, जो लोग वहां पे खड़े थे, they were speechless with wonder. सेम आपको सेंटेंस यहाँ पे मिल जाएगा. हाफ सेंटेंस दे हैव रिटन एंड हाफ यू हैव टू राइट. आपको आगे का लिखने का है, तो आप ये उसमें से फाइंड आउट भी कर सकते हैं. देन चेन याओजी लॉस्ट ऑल हिज एंगर एंड अनॉयंस. वो अपनी सारा, उसके अंदर जो गुस्सा था भरा हुआ, वो सारा गुस्सा उसका निकल गया सब. अब नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज अगेन यूज द फॉलोइंग वर्ड इन योर ओन सेंटेंसेस. नॉट अ ट्रेस, मतलब उसका इतना सा भी निशान नहीं रहना. सो देयर वॉज नॉट अ ट्रेस ऑफ वाटर इन अ टैंक. पानी में इतना सा भी बूंद पानी नहीं है, उसमें टैंक में कुछ भी पानी नहीं बचा. सो लाइक दैट वी कैन यूज वॉट एवर सेंटेंस. मैंने ये सिर्फ जस्ट एग्जाम्पल के लिए बताया. यू कैन राइट योर ओन सेंटेंस. ओके. बूस्टेड, बूस्टेड. अब्दुल कलाम नेवर बूस्टेड अबाउट हिम. वो अब्दुल कलाम, ये एग्जाम्पल लिया हमने. अब्दुल कलाम नेवर बूस्टेड. वो अपनी तारीफ करते थे कि कभी मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ, मैं बहुत बड़ा ये हूँ, आई एम वेरी ऑनेस्ट मैन, मैं बहुत ईमानदार हूँ. नेवर एवर, ही नेवर एवर बूस्टेड एनीथिंग अबाउट हिमसेल्फ. Now next is fill in the blanks. Fill in the blanks में in the bracket you have given words with, at, into, on, from. अब आपको यहाँ पे fill in the blanks है that you have to fill it. The coin had a hole. अब coin में जो hole है वो is at the center. Center में hole है exactly. तो अपना जो fill in the blanks है dash the center, at. हमारा word है at the center. The old man put an empty gourd. Old man ने ये empty gourd को, he put an empty gourd dash on the ground. Dash the ground. On the ground. He put the empty gourd on the ground. He poured oil, dash the gourd from dash a height. Into, first blank में into है and in the second blank you have to write from the height, ऊपर से. The people were speechless with wonder. जो people थे, जो लोग थे, वो speechless हो गए. उनके पास में कोई words ही नहीं था. Okay, ये देखकर. So they were speechless. Now last question is question number 5. Frame questions on the following sentences using any of the following question words. Okay. Now यहाँ पे आपको words दिए हुए who, what, when, why, how, where.
लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इज 5. ये 5th क्वेश्चन है, ये आपका इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है. सो दैट वी विल सी. He poured oil into the gourd. He poured मतलब डालना. So क्या डाला उसने? ऑयल. तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा? What did he pour? Poured यहाँ पे past tense लिखा हुआ poured, but here you have to write this form, present form, that pour. What did he pour into the gourd? क्या डाला उसने उस गोurd में? What did he pour into the gourd? Then Chen Yaozi was annoyed. Chen Yaozi annoyed. गुस्सा किसे आया था? Chen Yaozi को. So अपना क्वेश्चन क्या होना चाहिए? Who was annoyed? First letter capital and at the end you have to put a question mark. Chen Yaozi annoyed हुआ था, तो अपना क्वेश्चन है who was annoyed. Then next, an old man was sitting at the back. तो कहाँ बैठा था old man? Sitting, he was sitting at the back. तो where was the old man? Sorry, not sitting means standing. An old man was standing at the back. So where was the old man standing? Question mark. The oil went straight into the gourd. So how did, कैसे गया वो ऑयल, कैसे पास हुआ? So how did the oil go into the gourd? ऑयल गोurd के अंदर कैसे गया? तो ये क्वेश्चन है अभी हमारा. एट द एंड यू हैव टू पुट एन क्वेश्चन मार्क. हाउ डिड द ऑयल, प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पे वेंट, आंसर में आपको पास्ट टेंस दिया हुआ है, वेंट हमको प्रेजेंट टेंस यूज करने का, दैट इज गो इनटू द गोurd. So like this we have ended with this all chapter. I think you have liked this chapter. आपको ये चैप्टर जरूर पसंद आया होगा. Okay, so please read this chapter again. घर पे रीड करो एंड आप क्या करो, जो एक्सरसाइज का जो पार्ट है उसको पॉज करो. ट्राई टू फाइंड आउट बाय योरसेल्फ. फर्स्ट यू ट्राई टू फाइंड आउट ऑल द क्वेश्चन आंसर्स एंड देन सी कि जो अपने डिस्कशन में जो हो रहा है तो आपके आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं या नहीं. दिस यू कैन डू. और उसके बाद में ऑलरेडी वी आर सेंडिंग दिस इन द फॉर्म. ये आपको ये जो है पूरा ये जो पेज है वर्कबुक का, दिस आई विल क्लिक इट एंड आई विल सेंड यू दिस ऑल एक्सरसाइज. सो डोंट वरी अबाउट द एक्सरसाइज. आपको सारे एक्सरसाइज अच्छी तरह से मिल जाएंगे. यू कैन राइट इट. आपको नोटबुक में क्या करने का है, व्हाट यू हैव टू डू इन द नोटबुक, यू हैव टू राइट हार्ड वर्ड्स. अब ये जो हार्ड वर्ड्स है, दिस ऑल्सो आई एम गोइंग टू सेंड दिस हार्ड वर्ड्स. ये हार्ड वर्ड्स भी मैं आपको भेजूंगी. ओके, सो हार्ड वर्ड्स ऑल्सो आई विल सेंड यू हार्ड वर्ड्स ऑल्सो एंड देन यू हैव टू राइट डाउन द मीनिंग्स फ्रॉम द वर्कबुक. वर्कबुक में से आपको मीनिंग्स लिखने का, हार्ड वर्ड्स एंड मीनिंग्स यू हैव टू राइट इट in your in the notebook, and other all exercise you have to solve it in your workbook. Okay, so goodbye beta.